Good morning, everyone. I am your science teacher, and we are studying a chapter named Anita and the Honeybee. It is a story about a girl named Anita Khushwa who lives in Bocha village, which is in Muzaffarpur district in Bihar. He, she used to stay with her parents and young brothers. She used to like to study and she started doing beekeeping course. After a while, she was helping his parents. She used to spend his whole day while spending. She used to take goats for grazing the food, and she used to spend his whole time over there. She wanted to go to school, but her parents didn't allow her to go, and they didn't like the idea of going to school because because she was a normal girl of a villager, so they didn't allow her to go. This last paragraph is very important because Anita is a girl star. Anita is a girl star. Girl star is basically a project in which Anita name came, and she was an ordinary girl who changed her life by going to school. So her name was registered in this project, and she become famous after this. A dream of school. One day she thought that she has to go to the school. In a village, she has a school, and she went there. And what did she find? That she was very happy, and she peeped inside it. And what is peeping? Peeping means jhakna. So she peeped inside the school, and she liked a lot. And she understood that studying is very important. And she came back. On that day, after 3-4 days, teacher came to their village and they asked the parents that why is Anita not coming. So they told him that they don't want her to study, but he convinced parents that she used to come and learn the things. So the teacher told that there is free education up to class 8th क्लास. अब गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 8 तक फ्री एजुकेशन मिलती है, जिसमें बच्चे अपना स्कूल आते हैं, उन्हें मिड डे मील्स मिलती हैं, उन्हें पहनने के लिए कपड़े, उन्हें स्टेशनरी का सामान, स्कूल की बुक्स, सब कुछ उन्हें अवेलेबल स्कूल कराता है जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते. सो उन्होंने ये भी समझाया कि ये राइट है एक बच्चे का, दैट उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. शी स्पेंड हर क्लास 5 and in 6 her parents start saying to leave the school, but she wanted to continue it. So she started studying, and she started teaching the small kids, so that the money she earned and she spend it on the things afterwards. एक स्वीट मेमोरी बताई गई है इसके अंदर, दैट शी यूज टू स्पेंड टाइम्स इन टीचिंग younger students. So other boys in the village got scared that what is she doing? She's a girl. She doesn't have a right to teach students. और उन्होंने उसके छोटे छोटे से बेबीज़ को डराना शुरू कर दिया जो उसके पास पढ़ने आते थे. कुछ बच्चों ने उसको छोड़ भी दिया पढ़ना, बट धीरे धीरे एज द टाइम पासिस दे रियलाइज दैट जो अनीता थी बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, दैट शी लव टू टीच एंड शी टीच विद लव एंड केयर. सो वो वापस आ गए. एंड एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8, एंड ये फ्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन शुरू करी गई गवर्नमेंट से. RTE का मतलब है राइट टू फ्री एजुकेशन, मतलब सबके पास अधिकार है फ्री एजुकेशन लेने का. 2009 में ये एक चीज़ निकली थी, कंपलसरी एजुकेशन लेने का. 6 से 14 साल का बच्चा फ्री एजुकेशन पाएगा, जिसमें उसे पढ़ना, लिखना, साइन करना आ जाएगा और एक नॉर्मल लाइफ वो जी सकता है. इसीलिए
सो गवर्नमेंट ने ये चीज़ शुरू करी थी और ये खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर अवेलेबल है. नाउ as the time passes, she slowly and slowly spend her time in studying. उसके पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझ में आई दैट शी इज़ अ वेरी गुड चाइल्ड. सो उसकी मदर ने भी उसकी हेल्प करना शुरू करा एंड वो सारा हाउस होल्ड वर्क कर लेती थी और वो अपना टाइम पढ़ाई में स्पेंड करती थी. एक सीक्रेट बताया गया है कि उसने मोटर बाइक भी चलाना सीखा एंड इवन व्हेन शी फेल डाउन, वो गिर भी गई तब भी उसने ये चीज़ छोड़ी नहीं. बट शी इज़ हैप्पी दैट शी वॉज सक्सेसफुल एंड शी लर्नड हाउ टू ride a bike. And after that, she saw that there were many lychee trees in her area. Honeybees were attracted to them. Honeybees were there in their village. So she started finding what are these people do. So she find that देयर इज़ अ कोर्स. एक कोर्स है जो गवर्नमेंट चलाती है, उसका नाम होता है बी कीपिंग कोर्स. उसके अंदर ये सिखाया जाता है कि हनी बीज़ को कैसे पालें, कैसे रखें और क्या क्या चीज़ें करें, उनकी टेक केयर करें, जिससे कि वो जितना हनी कलेक्ट करके लाएं और हम उसको यूज़ कर लें और आगे बेचें, जिससे कि हम मनी अर्न कर सकें. तो उसने ये कोर्स सीखा और शी इज़ द ओनली गर्ल इन द गवर्नमेंट प्रोसीजर, इन द गवर्नमेंट ट्रेनिंग जो ये कोर्स सीख रही थी. एंड उसको ये पता लगा कि हनी बीज़ का सबसे अच्छा टाइम है अक्टूबर से दिसंबर का एग्स देने का, जिसके अंदर ये कोर्स बड़ा इजीली समझा जा सकता है और उनको बहुत अच्छे से पाला भी जा सकता है. बिकमिंग अ बी कीपर, शी कम्प्लीटेड ऑफ बिकमिंग अ बी कीपिंग कोर्स. उसने कंप्लीट किया, उसने अर्न करना शुरू करा पैसे. शी कंटिन्यू टू टीच विद द टाइम, ऑल्सो कलेक्टेड ₹5,000. और उसने जितने भी पैसे वो कलेक्ट करती थी वो थोड़ा सा टाइम बच्चों को भी देती थी पढ़ाने के लिए, और उसने एक बारी ₹5,000 इकट्ठे भी कर लिए. और उसने ₹5,000 जैसे ही इकट्ठे करे तो वो 2 बॉक्सेस लेके आई बी कीपिंग के. एक बॉक्स का कॉस्ट था 2,000 और दूसरे बॉक्स का कॉस्ट था 2,000. सो और बाकी के जो पैसे बचे वो उससे क्या लाई, शुगर लेकर आई टू मेक सिरप फॉर द हनी बीज एंड मेडिसिन्स टू क्लीन द बी हाइव. क्लास अगर आप पिक्चर पे देखें तो ये बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर हम हनी बीज को प्रॉपर जगह देते हैं, जिसके अंदर हनी बीज आती हैं अपना हनी कलेक्ट करके और इस बॉक्स के अंदर छोड़ देती हैं और इसी के अंदर अपना हाइव बना लेती हैं. नेस्ट नहीं होता हनी बीज का, इट इज़ हाइव. हम नेस्ट को क्या बोलते हैं, उनके हाइव. तो अपना छत्ता बना लेती हैं और इसी बॉक्स के अंदर रहती हैं. अब इसको पालने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती है. सिरप चाहिए होता है जो शुगर का चाहिए होता है. शुगर को जब हम काटते हैं तो वो एक क्रिस्टल फॉर्म बना लेता है, एक सिरप फॉर्म बना लेता है. उस सिरप फॉर्म को हम यूज़ करते हैं और हनी बीज़ के ऊपर के जो बॉक्स है और इस जगहों पे लगाते हैं, जिससे कि हनी बी अट्रैक्टेड रहें और बार बार आती रहें इस जगह पे, और हनी भी आती भी हैं. और मेडिसिन्स वगैरह को हम यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए हाइव, जो कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगी, नहीं तो वो हनी बी का एरिया ख़राब हो जाएगा और हनी बीज़ बीमार भी हो सकती हैं. सो ये सब उसने करना शुरू किया. 1 सितंबर की बात है, जब दिसंबर आया, शी बाय 2 मोर बॉक्सेस. उसने इतने पैसे कमा लिए कि वो 2 और बॉक्सेस ख़रीद के लाई और उसमें भी उसने बी कीपिंग शुरू करी. एंड बहुत टाइम ऐसा होता था उसके हाथ बहुत दर्द करते थे, स्वॉलो हो जाते थे, स्टिंग करते थे. क्योंकि स्टिंग मतलब ये बदबू वाला नहीं, स्टिंग मतलब बीज जो थी डंक मार देती थी, बीज जो थी काट देती थी, इसलिए उसके हाथ बहुत दर्द करते थे और उसको बहुत पेन होता था. सो शी डिसाइडेड टू डू द वर्क after that also, and she didn't complain anybody about it. और जब ये बीज स्टिक करती है, आपको स्टंग करती है, तो आप क्या लगाते हैं इसके ऊपर? हम लोग ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, या फिर हम जो आपका घरेलू इलाज है, मम्मा पापा कहते हैं कि चाबी जो होती है वो लोहे की होती है, लोहे की चीज़ उस पर रगड़ा करो जिससे कि वो चीज़ आपका जो पूरा स्टंग करके स्वलन हो गया है वो आराम आ जाता है, या फिर ऑइंटमेंट्स लगाते हैं हम लोग इस पर. लीची ट्रीज़ का उगने का टाइम हो चुका था.
February के अंदर शी पुट 4 boxes इन द लीची ऑर्किड। ऑर्किड मतलब बगीचा, तो उसने लीची के बगीचे के अंदर ये 4 बॉक्सेस रख दिए और उसने उस महीने 12 किलो का हनी एक बॉक्स में से निकाला और उसने ये सारा हनी जाके मार्केट में दिया और वो एक पहली गर्ल बन गई थी जिसने इतना हनी कलेक्ट किया था। एंड आफ्टर दैट शी अर्न 20 मोर बॉक्सेस। ओके, सो 20 बॉक्सेस, एक बॉक्स की कॉस्ट 2000 थी, तो 20 बॉक्सेस की कॉस्ट क्या हुई? इट इज़, बताइए मुझे। यस, एक बॉक्स की कॉस्ट 2000 थी, तो कितने हो गए? यस, वेरी गुड, बताइए। It's 40,000. Yes, every day she used to cycle. She used to use her cycle to go to college and go 5 kilometers away for the college. वो 5 किलोमीटर साइकिल चला के जाया करती थी पढ़ने के लिए और अपनी पढ़ाई भी करती थी, साथ ही साथ वो बच्चों को भी पढ़ाती थी और बी कीपिंग कोर्स भी करती थी। उसकी मदर और फादर ने उसकी हेल्प करना शुरू किया। मदर उसके पीछे उसका सिरप वगैरह बना देती थी बीज का, और फादर्स जो थे, फादर क्या करा करते थे, फादर हनी निकाल देते थे हनी बीज के अंदर से, हनी बीज के अंदर से नहीं, सॉरी, हनी बी के बॉक्स में से हनी निकाल लेते थे। नेक्स्ट इज़ अनीता इज़ वेल नोन इन द विलेज। अब वो इतनी जानी पहचानी हो गई थी, सारे विलेजर्स उस पर बहुत प्राउड थे कि वाओ, इस लड़की ने बहुत अच्छा काम किया हमारी विलेज के लिए। सो शी वॉन्ट टू नो दैट what she already knew that what she is doing is good for her village। तो उसने बोला कि मैं लोगों की भी मदद लेती हूँ, लोगों को भी ये काम सिखाती हूँ और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और पैसे अर्न करें। तो उसने ये चीज़ शुरू कर दी एंड शी बिकम अ होलसेलर। होलसेलर क्या होता है? होलसेलर एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी चीज़ें सस्ते में, उसके पास बहुत क्वांटिटी होती है, होलसेलर के पास एक लार्ज क्वांटिटी होती है और वो अपना दाम कम रख कर लोगों को बेचता है। होलसेलर के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है और वो अपने दाम कम रखता है और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके पास आएँ और ख़रीदें। होलसेलर्स रिटेलर्स को भी देते हैं। रिटेलर्स क्या होते हैं? होलसेलर के आगे अब हर कोई तो जाके फार्मर से नहीं ले सकता, तो फार्मर्स क्या करते हैं? होलसेलर्स को देते हैं अपना सामान। होलसेलर्स क्या करते हैं? अपना इतना क्वांटिटी फार्मर्स से ले लेते हैं कि रख कर उनको आगे रिटेलर्स को देते हैं। जो रिटेलर्स छोटी छोटी दुकानें जो हमारे घर के आसपास होती हैं, उधर वो दुकानें इनसे होलसेलर से ख़रीदती हैं और उसके बाद ख़रीद के हमें आगे रिटेलर्स हमें देते हैं छोटी छोटी दुकानों के थ्रू और हम कस्टमर उनसे लेते हैं जाकर। सो she became a wholesaler of honey bees, she became a wholesaler of honey। वो ये हनी बीज से हनी निकालती थी और आगे जाके राइट प्राइस पे बेचती थी, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं चार्ज करती थी, जिससे कि उसको ज़्यादा पैसे भी ना मिले और सबको फ़ायदा हो। तो इसने ये चीज़ सबको अपने विलेज के अंदर सिखानी शुरू कर दी एंड शी बिकेम अ होलसेलर। ओके, अभी कुछ एक चीज़ें बताई गई हैं। एक बी हाइव के अंदर कौन कौन होता है? एक बी हाइव के अंदर एक क्वीन भी होती है जो अंडे देती है। सिर्फ एक क्वीन भी होती है जो अंडे देती है, बाकी उसकी हाइव में मेल बीज होते हैं जो कुछ काम नहीं करते, वो सिर्फ अपना हाइव के अंदर बैठे रहते हैं और सबसे ज़्यादा काम वर्कर बी करती है। वर्कर बी कौन होते हैं? जो मज़दूर कहते हैं हम, वही जाके बाहर पूरा दिन अपना टाइम बिताती हैं, वो हाइव को बनाती हैं, वो लुक आफ्टर करते हैं छोटे छोटे बेबी बीज को, वो नेक्टर ढूंढ के लाती हैं फ्लावर्स के अंदर से। जब भी बी को एक नेक्टर मिलता है, नेक्टर मतलब जूस मिलता है एक फ्लावर के अंदर, तो वो उसके पास जाके बड़ा अच्छा सा एक डांस करती है। जब एक बी वहाँ पे जाके साउंड निकाल के डांस करती है तो बाकी सारी बीज को पता लग जाता है कि ये फ्लावर के अंदर बहुत सारा नेक्टर है, तो वो इसी फ्लावर के अंदर से सारा नेक्टर ले लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं और सारी बीज वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं और वो सारा अपने हाइव के अंदर ले जाना शुरू कर देती हैं। सो अगर वर्कर भी नहीं होगी तो कुछ भी काम नहीं होगा, क्योंकि हाइव के अंदर सिर्फ वही काम करती हैं। सो ऑल द बीज हाइव, जितनी भी बीज है वो हाइव के अंदर हंगरी बैठी रहती हैं। मेल बी का कोई रोल नहीं होता एक हाइव के अंदर। अब ऐसा ही सेम इन्होंने ये बताया कि एंड्स भी हाइव की तरह ही रहती हैं, एंड्स भी बीज की तरह ही रहती हैं। उनके वहाँ पे भी ग्रुप के अंदर एक हनी बी की तरह एक एंट क्वीन होती है, क्वीन एंट।
ठीक है, जो अंडे देती है। और एक सोल्जर एंड्स होते हैं जो गार्ड करते हैं नेस्ट को, जो लुक आफ्टर करते हैं नेस्ट को कि कोई उसे तोड़ ना जाए, कोई उसे मार ना दे, हमारी क्वीन को ना मार दे, वो करते हैं गार्ड सोल्जर एंड्स। और यहाँ पे एक वर्कर एंड्स भी होते हैं। वर्कर एंड्स क्या करते हैं, वो पूरा टाइम बाहर निकले रहते हैं, घर के बाहर। दे यूज टू ब्रिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, वो खाना लेकर आते हैं और वही खाना सब लोग खाते हैं। टर्माइट्स और वॉस्प, टर्माइट्स क्या होते हैं, दीमक, और वॉस्प क्या होते हैं, छोटे छोटे टर्माइट्स की तरह कीड़े जो ये सब करते हैं काम, और वो भी इन लोगों की तरह, एंट्स की तरह ही रहते हैं। तो ये हमने 2 ग्रुप्स के बारे में आज पढ़ा है, एंट्स के बारे में और हनी बीज के बारे में, जिनके अलग अलग लोग, अलग अलग मेंबर्स होते हैं। And I think that's it in this chapter. So everyone, please listen to this carefully and understand. If you still face a problem, please contact me. Thank you.